ایک یہ بھی آیا کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ مرغ اور انڈے کی قربانی بھی کر سکتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، مرغی کی قربانی آپ کر سکتے ہیں اپنے کھانے کے لیے، لیکن اس مرغی کو بقرہ عید میں بطور قربان پیش کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس قربان کے لیے اونٹ، گائے، بکرا، دمبا وغیرہ کی فہرست حدیث پاک میں موجود ہے۔ تو اب اس کے خلاف ہم اگر کوئی کام کرنے جائیں گے تو یہ حدیث کے خلاف ہو جائے گا۔ اب ان سے پوچھے کہ یہ لوگ بار بار ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہ حدیث میں کہا ہے، یہ حدیث میں کہا ہے، تم بدعت کرتے ہو، میلاد کرنا حدیث میں کہا ہے، جبکہ وہ سب موجود ہے۔ میلاد تو قرآن سے بھی ثابت ہے۔ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، اب آپ ان سے یہ سوال کریں کہ مرغی اور انڈے کی قربانی حدیث پاک میں دکھا دیجئے، اور وہ بھی اس نوعیت پہ دکھائیے کہ بقرہ عید میں مرغی اور انڈے کی قربانی ہوئی ہے، یہ دکھائیے۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ انڈے کی قربانی کس طرح یہ لوگ کرتے ہیں، قربانی تو جانور کی ہوتی ہے نا، یہ انڈے کی قربانی کس طرح کرتے ہیں؟ تو یہ بس اہل حدیث، یہ غیر مقلدین، دراصل حقیقت تو یہی ہے کہ جو بے وقوف ہوگا وہی غیر مقلد ہوگا۔ ہاں تو سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان، اتر پردیش، الہ آباد سے۔ تو سامعین، ابھی آپ نے ویڈیو دیکھا، ٹھیک ہے، یہ ایک بریلوی، ایک جاہل ہیں جو اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں۔ ان کا نام ہے حافظ احسان اقبال قادری عرف پادری۔ تو یہ جو ہے، یہ ایک بریلوی بدعتی مشرک جو فرقہ ہے اس سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے اہل سنت، اہل حدیث کے اوپر جھوٹ بولا کہ اہل حدیث بقرہ عید پر جو جانور ہیں چار پاؤں والے مویشی جانور، ان کو چھوڑ کے جو انڈا ہے، انڈے کی قربانی دیتے ہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ بولا انہوں نے۔ تو یہ تمام حنفیت کو چیلنج ہے، جتنے کوفہ کے قیاسی حنفی مقلد ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں یا قادیانی ہوں، وہ یہ ثابت کر دیں کہ اہل سنت، اہل حدیث کے کون سے معتبر عالم دین نے عید الاضحیٰ کے موقع پہ، یعنی کہ جس کو عام طور پہ ہم لوگ بولتے ہیں بقرہ عید، بقرعید، ٹھیک ہے، بڑی عید، تو کب کون سے فیمس اہل حدیث عالم دین نے چار پاؤں والے جو جانور تھے مویشی، ان کو چھوڑ کے بقرہ عید پر انڈے کی قربانی کرائی؟ وہ یہ ثابت کر دیں، ورنہ یہ جھوٹ بول کے عوام کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں۔ انڈے کی قربانی کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آج بتاؤں گا۔ اور یہ حنفی مقلد جو کوفہ کے قیاسی ہیں، وہ جو بھولی بھالے جو عوام ہیں ان کو کیسے بیوقوف بناتے ہیں اور کیسے ان کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آج بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلا جو میرا سوال یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی حنفی یہ ثابت کر دے کہ اہل حدیث کے کون سے عالم دین نے یہ عمل کیا ہے کہ اس نے عید الاضحیٰ کے موقع پہ وہ نماز پڑھ کے آیا ہو اور اس نے جانور کی جو قربانی ہوتی ہے اس کو نہ کی ہو بلکہ انڈے کی قربانی کی ہو۔ ایک عالم کا نام بتائے، کبھی نہیں بتا پائے گا۔ بس جو پتہ نہیں کہیں کے سر کہیں کی ٹانگ جوڑنے والے جو فتوے ہوتے ہیں وہ جوڑ کے اہل حدیث کے اوپر تھوپ دیے جاتے ہیں کہ یہ دیکھو اہل حدیث کے جو مشہور عالم دین ہیں، غیر مقلد عالم دین ہیں، ان کا فتویٰ ہے کہ انڈے کی قربانی کرنا جائز ہے۔ بھائی ایسے فتووں کو ہم نہیں مانتے ہیں، کیونکہ آپ کے علامہ صاحب نے خود کہا ہے یہ اہل حدیث، یہ غیر مقلد۔ تو بھیا جب غیر مقلد ہیں تو ہم پہ ہمارے عالموں کے الٹے سیدھے فتوے وہ پیش کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم صرف مانتے ہیں الحمدللہ جو باتیں ثابت ہوتی ہیں دلائل سے۔ اگر انڈے کی قربانی، ٹھیک ہے، بقرہ عید پر جو چار پاؤں والے جو مویشی جانور ہیں ان کو چھوڑ کے انڈے کی قربانی کرنا جائز ہے، اس پہ اگر کسی عالم دین نے کوئی حدیث دی ہو، کوئی قرآن کی آیت پیش کی ہو، کسی صحابی کا عمل ثابت کیا ہو، تو بھیا ہم بھی مان لیں گے کہ ہاں بھائی چار پاؤں والے جانور چھوڑ کے انڈے کی قربانی کر دو۔ لیکن ایسے نہیں مانیں گے کہ کوئی خالی کسی کا فتویٰ ہمارے اوپر تھوپ دے، کیونکہ یہ ہر سال یہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ، ٹھیک ہے، بقرعید سے چند دن پہلے جو حنفی مقلد ہیں وہ سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ یہ شیئر کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو جو غیر مقلد ہے، اہل حدیث ہیں،
इनके वहाँ का फतवा है कि अंडे की कुर्बानी वो जायज़ है। तो आइए सबसे पहले तो आपको बता देते हैं ये अंडे की कुर्बानी है क्या। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊंगा, बिल्कुल ना तो घुमाऊंगा ना फहराऊंगा। देखिए, जो कुर्बानी है, जैसे हम लोग आम तौर पे कहते हैं कि भाई अल्लाह सुब्हानो ताला की जो राह है, हम उसमें अपना जान माल और अपना वक्त ये हम कुर्बान कर देंगे या करने को तैयार हैं। तो इसका माना ये नहीं है कि जो हमारा वक्त है तो मतलब जो मतलब घड़ी है, घड़ी को काटेंगे, है ना। यानी कि अगर कोई कह रहा है कि अल्लाह की राह में अपना जान माल वक्त कुर्बान करना, तो क्या अब जो घड़ी है, वक्त है, क्या उसको काटेंगे हम? क्या वक्त को क्या कोई काट सकता है? ये हनफी मुकल्लिद इतना बड़ा धोखा देते हैं। वो ये धोखा देते हैं कि अंडे की कुर्बानी से उन्होंने खुद साख्ता कयास कर लिया कि ज़बिया, जबकि जो कुर्बानी है वो अलग है, जो ज़बिया है वो अलग है। जो ज़बिया होता है वो होता है जानवरों का, जो 4 पाँव वाले होते हैं उनका ज़बिया होता है। और जो हलाल होता है वो होता है जैसे आपका भाई ये मुर्गा हो गया, मुर्गी हो गई, उसको भी हम लोग मेरे भाई चाकू से हलाल करते हैं। लेकिन जो ये अंडा है, अंडे में खून नहीं होता, ब्लड नहीं होता। तो अंडे में जब खून नहीं होता है तो इससे कुर्बानी का माना ये है कि इसको सदका करना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये एक अंडा है और मेरे को बहुत भूख लगी है और मेरे पास ये एक ही अंडा मैं खरीद के लेके आया हूँ। अब उसी वक्त बेचारा कोई हमारा पड़ोसी आ जाता है या कोई गरीब आ जाता है या कोई मिस्कीन आ जाता है या कोई बेचारा भूखा आ जाता है, तो हम अपने इस अंडे को खुद इस्तेमाल ना करके हम किसी और को दे देते हैं उसका पेट भरने के लिए। तो गोया ये अंडा हमने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। इसका माना ये नहीं है कि अंडे को ज़िबा कर दिया। ज़बिया अलग होता है, ज़िबा करना अलग होता है, हलाल करना अलग होता है और कुर्बान अलग होता है। जैसे मैंने भी आपको मिसाल दी कि अल्लाह सुब्हानो ताला की राह में जान माल वक्त को कुर्बान करना। तो क्या कोई नोट है, पैसा है, तो क्या नोट को कोई काटेगा? या जो वक्त है, चलिए ये मान लिया वक्त है, अब क्या वक्त को कोई क्या काटेगा उसको? नहीं, वक्त को कोई ज़िबा नहीं कर सकता। वक्त को हम कुर्बान कर सकते हैं, यानी कि अपना वक्त अल्लाह की राह में हम दे सकते हैं। लेकिन वक्त को कुर्बान करने से माना ये किसी ने नहीं लिया कि उसको हलाल करना, ठीक है। वक्त का मतलब जो ज़बिया होता है, ज़बिया करना। तो इसी तरीके से जो अंडा है, अंडे को भी ज़बिया नहीं किया जाता है, बल्कि अंडे का सदका करके, किसी गरीब की मदद करके, किसी बेचारे भूखे को अपने हिस्से का अंडा दे के ये अल्लाह की राह में हम उस अंडे को कुर्बान कर रहे हैं। तो ये कुर्बान का माना है। और हनफी मुकल्लिदों ने जो कुर्बानी है, कुर्बानी से कयास करके उसको माज़अल्लाह ज़बिया बना दिया। बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं है, एक नंबर के जाहिल हैं, अंधे मुकल्लिद हैं। मैं तो कहता हूँ गुमराह मुकल्लिद हैं। अब सुनिए आगे बात। ये हर साल मेरे भाई बकरा ईद पे, ईद उल अज़हा के मौके पे ये हनफी मुकल्लिद लोग ये सोशल मीडिया पे जो अहले सुन्नत अहले हदीस हैं उनसे पूछते रहते हैं कि ये बताइए, आपके मौलवी तो ये लिख के गए हैं कि अंडे की कुर्बानी करना जायज़ है, तो अंडे को जब आप कुर्बान करेंगे तो उसको कहाँ पे रखेंगे? उसको क्या आप लोग किबला रुख रखेंगे? और उसको ज़िबा कैसे करेंगे? ठीक है, ज़िबा करते वक्त उसको कौन सी दुआ पढ़ेंगे? और उसके जो खाल है, यानी कि अंडे के जो छिलके हैं, वो कौन सा मतलब भाई आपकी मस्जिद है, मदरसा है, जहाँ तकसीम करेंगे? और अंडे की जो सफ़ेदी है और जो उसकी जर्दी है, उसके 3 हिस्से कैसे लगाएंगे? एक अपने लिए, एक अपने ख़ानदान वालों के लिए, और एक जो बेचारे मतलब गरीब हैं, तो 3 हिस्से कैसे लगाएंगे? तो आइए अब मैं उनको उन्हीं की ज़ुबान में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो सवाल करते हैं ये हनफी मुकल्लिद करते हैं, अहले सुन्नत अहले हदीस जो हक जमात है उसको छेड़ने के लिए। अंडे को रख लिया, अंडे को रखा किबला रुख, और उसको हनफी मुकल्लिदों के उसूल के एतबार से उनके वहाँ जो अंडे की कुर्बानी है, यानी कि उसका माना ये है कि अंडे को ज़िबा करना,
यानी कि उसको ज़िबा करना। तो ज़िबा करने का मानिए कोई मेरे भाई हनफी मुकल्लिद है, उससे कहते हैं कि भाई अंडा कुर्बान करना जायज़ है, यानी कि अंडे की कुर्बानी करना जायज़ है, तो वो फ़ौरन अपनी जो कूफा की कयासी वाली जो अकल होता है उसको दौड़ाता है और वो कुर्बानी से कयास करके पहुंच जाता है ज़बिया पे। तो वो कहता है कहाँ किबला रुख करोगे, उसके बाद अंडे के ऊपरी हिस्से पे चाकू रखोगे या नीचे वाले हिस्से पे चाकू रखोगे, और कौन सी दुआ पढ़ोगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के ज़िबा करोगे, इसके जो छिलके हैं यानी कि जो खाल है कौन से मदरसे में तकसीम करोगे, इसकी जो सफ़ेदी है और इसकी जो पीलापन है जर्दी है वो कैसे तकसीम करोगे, 3 हिस्से कैसे लगाओगे। तो ये फ़र्जी सवाल ये हनफी मुकल्लिद ही सिर्फ इस दुनिया में कर सकता है, क्योंकि उसके पास कोई सेंस नहीं है, यहाँ तक कि जो कॉमन सेंस होता है, जो बेचारे जो कॉमन इंसानों में होता है वो भी उनमें नहीं होता है। अरे भला अंडे की कुर्बानी अलग चीज़ है। जैसे वक्त को कुर्बान करने का माना ये नहीं है कि वक्त को हम उसको किबला रुख करेंगे और उसको ज़िबा कर देंगे, उसी तरीके से जो अंडा कुर्बान करना है तो वहाँ आपने ज़बिया कैसे ले लिया। ये ज़बिया जिन जाहिलों ने लिया है ये तो गलती उनकी है ना। हम लोग तो आम तौर पे कहते ही हैं कि अल्लाह सुब्हानो तआला की राह में अपना जान माल वक्त को कुर्बान कर दिया, तो वक्त को कुर्बान कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वक्त का मेरे भाई हमने उसको ज़िबा कर दिया या हलाल कर दिया। इसी तरीके से अंडे को कुर्बान करने का जब भाई वो नाम आएगा तो इसका माना सिर्फ एक ही समझा जाएगा कि अंडे को सदका कर देना, अपने हिस्से की जो मेरे भाई खुराक है ग़िज़ा है वो किसी और को दे देना अल्लाह के लिए। तो गोया ये अंडा सदका करना अल्लाह की राह में हमने अपना अंडा कुर्बान कर दिया, इस माने में लिया जाएगा। लेकिन अंडे का कुर्बानी से ज़बिया पे कयास करना ये तो हनफी मुकल्लिदों की गलती है ना। तो सामाइन आपके समझ में आ गया कि अंडे की जो कुर्बानी है वो अलग है और अंडे का जो ज़बिया है वो अलग है। और ये हनफी मुकल्लिद इतने बड़े जाहिल हैं कि वो कभी जो ज़बिया होता है उससे कुर्बानी पे कूद जाते हैं, कभी कुर्बानी से ज़बिया पे कूद जाते हैं। ये लोग ऐसी खिचड़ी पका रखे हैं कुर्बानी और ज़बिया के बीच कि आम लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं और अहले सुन्नत अहले हदीसों के नाम से लोगों को बज़्ज़न कर रहे हैं। हमारे किसी आलिम दीन ने बकरीद के मौके पे 4 पाँव वाले मवेशी जानवर को छोड़ के कभी अंडे की कुर्बानी ठीक है ज़बिया करके कभी नहीं दी। अंडे को कुर्बान करना ये अलग मसला है, लेकिन बकरीद में कोई 4 पाँव वाले मवेशी जानवरों को छोड़ के अंडे की कुर्बानी कभी उसने नहीं दी। तो ये सबसे बड़ा झूठ है हनफियों का, ये बहतान है जो अहले हदीसों को बदनाम करने के लिए ये जाहिल लोग फैलाते हैं। अंडा खाना हलाल है, अंडे को अगर हम अल्लाह की राह में सदका करते हैं तो ये अंडे की कुर्बानी हुई। मान लीजिए आखिरी एग्जाम्पल देता हूँ उसके बाद इंशाल्लाह वीडियो बंद। मान लीजिए कोई भाई हमारा हनफी मुकल्लिद भाई है और बेचारा भिखारी है, उसके खाने के वांदे पड़े हुए हैं और अहले सुन्नत अहले हदीस के पास ये एक अंडा है। अब भाई वो हनफी आया और अहले हदीस से कहने लगा भाई यार ये अंडा मुझे दे दो, मैं खा लूँ, बहुत भूख लगी है। तो जो अहले हदीस है उसने जो हनफी मुकल्लिद जो था भिखारी उसको ये अंडा सदका कर दिया कि ले भाई तू खा ले। तो ये अंडे की कुर्बानी हुई। गोया अहले हदीस ने अंडे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया सच और सदका कर दिया। तो ये कुर्बानी है अंडे की, जिसको हम कहते हैं अंडे की कुर्बानी करना जायज़ है। लेकिन हनफी मुकल्लिद जिस कुर्बानी को वो ज़बिया कयास कर रहे हैं और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के उसको काटे दे रहे हैं और उसके हिस्से लगाए दे रहे हैं, यानी कि माज़अल्लाह शरीयत का माज़अल्लाह वो तौहीन कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। उनको अल्लाह से तौबा करना चाहिए। इतना ही आपको बताना था सामाइन कि इन जाहिलों के फितनों से बिल्कुल बच के रहें। ये लोग कहते कुछ हैं, समझते कुछ हैं, करते कुछ हैं और लोगों को बताते कुछ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।